Namaste students. So in previous lecture we have discussed about the chemical properties of metals. So in this very lecture we are going to discuss about the reactivity series. I think one question is coming in your mind that ma'am, when we have to do the chemical properties of non-metals. So let me clear one thing here. See, if we talk about the chemical properties of non-metals, in case of non-metal can react only with oxygen, and we know that when non-metal react with oxygen, it gives the formation of non-metallic oxide, which we have done already in the difference. Okay, but if we talk about the chemical properties of non-metals and the reaction of non-metals with water and with acids, we know that non-metals not react with metals or acids, and moreover because what is the main reason that why non-metals not produce hydrogen gas when react with water? So here one reason is only, we know that non-metals are electron acceptor. By the way, metals were the electron donor. So it is the reason that non-metals not produce hydrogen gas, just because of that non-metals are the electrons acceptor, कि वो electrons gain करते हैं, they don't have tendency to lose the electron. Okay, so now in this very lecture we are going to study about the reactivity series. Okay, reactivity series. Or we can say it activity series also. So don't be confused in this. Activity series. See, what is reactivity series here? It is just a list of metals, and moreover we have done this list in chapter first also, chemical reactions and equations. I told you when we have done the displacement reaction. Okay, so what is reactivity series? It is a list of metal which are arranged in order of their decreasing activities. Okay, so let me write the definition. What will be the definition? It is a list of metals, मीन्स मेटल्स की एक लिस्ट है जिसको हमने अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज. ओके, सो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल्स विच आर अरेंज्ड in order of their decreasing activities. See, in chemical properties also we have discussed when we have done the chemical properties of metals. I told you that the all metals not react with equal as, कि हमने उसके अंदर पढ़ा था कि उसमें कुछ जो हमारी मेटल हैं, सम मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, सम आर एवरेज एंड सम आर लीस्ट रिएक्टिव. ओके, तो सारी मेटल्स की हमारी जो रिएक्शन है किसी भी चीज़ के साथ, इफ़ वी टॉक अबाउट द एसिड, इफ़ वी टॉक अबाउट द वाटर, इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, इन ऑल केसेस उनकी जो रिएक्टिविटी का डिफरेंस रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर है. कुछ जो हमारी मेटल्स है वो बड़ी विग्रसली रिएक्ट कर लेती हैं, बड़ा फास्टली रिएक्ट करते हैं. कुछ मेटल्स हैं जो एवरेज, ना ही इतना फास्ट रिएक्शन करती हैं ना ही बिल्कुल स्लो करती हैं. बट द मेटल्स विच आर लीस्ट रिएक्टिव, वो क्या है, उनकी जो हमारी रिएक्शन की का जो हमारा लेवल रहेगा दैट इज़ वेरी लेस. हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ केसेस में ये होता है कि वो रिएक्ट ना भी करें. ओके, सो व्हाट इज़ दैट ऑर्डर? मोरओवर वी हैव डन ऑलरेडी इन चैप्टर फर्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, lead, copper, mercury, gold and silver. So it is the reactivity series which is going to decrease. See, we know that sodium and potassium, these are the highly reactive metals, and that's why the number of these metals in this list is at the top. That means these are the most reactive metal, these are the medium, and these are the least reactive metal.
कि जो हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, दीज मेटल्स आर द हाईली रिएक्टिव मेटल। सो दैट्स वाई इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमने इसको कहाँ पर रखा है, टॉप में रखा है, बड़ी फिगरसली रिएक्शन कर जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड, ये सारी क्या है हमारी जो मिडल में आती हैं, दैट मीन्स एवरेज ये रिएक्ट करती हैं, ना ही इतना फास्ट करती है और ना ही बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। इफ वी टॉक अबाउट कॉपर, मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर, Cu is the symbol of copper, Hg for mercury, Au for gold and Ag for silver. That means these are the least reactive metal, जो reactivity series में बिल्कुल लास्ट में आते हैं, that means वो बिल्कुल कम रिएक्ट करते हैं। ओके, सो इट वॉज द रिएक्टिविटी सीरीज। इफ वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी हैव डन ऑलरेडी। हमने क्या किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कि कोई भी जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। एंड व्हाट इज द हाईली रिएक्टिव मेटल, दोज आर, सपोज हमारे पास क्या था, इफ वी आई राइट Fe प्लस CuSO4, वी नो यू कैन चेक इन द रिएक्टिविटी सीरीज, आयरन नंबर इज हेयर बट कॉपर इज हेयर। ओके, हालांकि जो 4 हमने मेटल्स लिखे हैं नीचे ही आने थे, ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस आई हैव रिटन दीज 4 मेटल्स हेयर। ओके, सो हमारा जो आयरन है वो कहाँ पर है, सीरीज में ऊपर से नीचे हमारे आयरन कहाँ है, ऊपर है, टॉप में है। जो हमारा कॉपर है ये हमारा कहाँ पे, थोड़ा सा और नीचे है, दैट मीन्स कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन iron. So what can be the reaction here? We know that iron is more reactive but copper is less reactive. If we talk about the displacement reaction, that highly reactive metal can displace the less reactive metal. And how it will displace? It will give the formation of FeSO4 plus copper. मीन्स ये हमारा जो कॉपर का सोल्ट सॉल्यूशन है, इसके अंदर से उसने कॉपर को डिस्प्लेस करके उसके प्लेस पे खुद आ गया है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द that how metals and non-metals react with each other. We know that metals are the electron donor and non-metals are the electron acceptor. We have discussed about these things already when we have done the difference of metals and non-metals. What is our topic? Our topic is how do metals and non-metals react with each other. कि जो हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। सी बेटा, इन आवर 9th क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वी नो अबाउट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट आर द नोबल गैसेज? नोबल गैसेज हमारे पास वो थी कि जो क्या जिनकी आउटर मोस्ट सेल क्या थी, कम्प्लीटली फील्ड थी, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ओके, सो सेम थिंग हेयर कि जितने भी हमारे पास मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या हमें क्यों लॉस और गेन करने की ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज वी नो दैट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज़ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हमारा जो कोई भी एटम है, कोई भी जो हमारा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, चाहे हम मेटल्स की बात करें या फिर नॉन मेटल्स की बात करें, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तभी अटेन करता है जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल आ जाए, हमारे नोबल गैस के इक्वल। और नोबल गैस के अंदर हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट हीलियम ऑल आर ऑक्टेट, बिकॉज हीलियम की आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2. इफ वी टॉक अबाउट KLMn cells, in the outermost cell of helium 2 electrons are there, rest all are octet. तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो इट इज़ कोल्ड डुप्लेट, और जिसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, ऑक्टेट।
Moreover, we have discussed about all these things in our 9th class also. ओके अगर 2 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ये केवल एक ही केस में होता है, किसके केस में, हीलियम के केस में, या फिर जब हम हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचाएंगे, तो वो डुप्लेट बन सकता है. हमारी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस जितने भी हैं सबके अंदर एक्सेप्ट हीलियम ऑल आर ऑक्टेट, उनकी सबकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे एंड दोज 8 इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द ऑक्टेट. If 2 are there, in case of helium it is called duplet. Okay, so question is very clear here कि मेटल और नॉन मेटल अपने डुप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करके क्या करेंगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करेंगे. ओके और हमने ये भी पढ़ा था हमारे मेटल और नॉन मेटल्स के डिफरेंस में कि जब कोई भी एलिमेंट, सपोज मेटल्स ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन वो लॉस करते हैं एंड आफ्टर लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन व्हाट इज देयर, a positive charge formation is there, that means cation formation is there. And if we talk about non metals gain electron to complete its octet, and after gaining electron there is a net negative charge formed on the non metal which is called anion. Okay, so let me do some examples about this. Suppose we have sodium chloride, it's quite easier one. If you know the atomic number of all the elements, it will be easy for you. Okay, symbol and their atomic number should be clear to you before doing this. Okay, see, suppose we have a compound sodium chloride. Question is there that draw the electron dot structure of sodium chloride. Okay, for that what you need to do, first of all separate the element. We have 2 elements here, sodium and 1 chlorine. Write the atomic number of sodium, it's 11, and if we talk about chlorine, it is 17. We know that sodium is a metal and chlorine is a non-metal. Okay, now write their electronic configuration. 2 8 1 2 8 7. इसमें हमने 2 क्यों रखा के शेल के अंदर, बिकॉज मैक्सिमम ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं एंड रेस्ट ऑल दीज कैन अकोमोडेट 8 8 8. ओके, फर्स्ट वाले में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 11. इन फर्स्ट शेल वी हैव रिटन 2 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट में कितने बचे, 8 8 ही आ सकते हैं, हमें कितने चाहिए, 11. 2 and 8 10. 9 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्यों, बिकॉज एल शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, ओनली 8, नॉट मोर देन 8. ओके, सो दैट्स वाई वी हैव शिफ्टेड दैट 1 मोर इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट शेल. ओके, सी नाउ इन केस ऑफ सोडियम M इज द आउटर मोस्ट शेल. सोडियम के केस में M क्या है, हमारी बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल है, बट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है, बिकॉज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में तो क्या होना चाहिए, या डुप्लेट होना चाहिए या फिर ऑक्टेट होना चाहिए. डुप्लेट भी किस में, केवल के शेल के अंदर ही होना चाहिए, बाकी सब में क्या होना चाहिए, ऑक्टेट होना चाहिए. ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो M शेल है या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन कांट अकोमोडेट. ओके, अगर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा होने की वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर हम उनको इजीली नहीं पुट कर पाएंगे और एटम की हमारे जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, वैनिश हो जाएगी. सो क्या बेटर है कि हमारा जो सोडियम है अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दे, लॉस कर दे. लॉस कर दे मीन टू से किसी और को दे दे. ओके, सी स्टार्टिंग में क्या है, Na के अंदर हमने क्या लिखा, 2 8 1. ओके, एंड आफ्टर लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन Na के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस E नेगेटिव. E नेगेटिव मीन टू से किसका, एक इलेक्ट्रॉन जो था हमारे पास सोडियम का ये वाला, ये इसने लॉस कर दिया है. अब यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रही, 2 and 8. पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, हमें पता है कि दैट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम. हमें पता है दैट सोडियम कंटेन 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन. सी हेयर नाउ, प्रोटॉन तो हमारे एज इट एज हैं, प्रोटॉन के अंदर कोई कमी नहीं हमने की, केवल इसने क्या लॉस कर दिया, अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया. इलेक्ट्रॉन कितने बच गए अब यहाँ पर, प्रोटॉन 11 ही हैं बट इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 10.
और हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। सो ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया है कि प्रोटॉन ज़्यादा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन हमारे कम हो गए हैं। सो इट इज़ द रीज़न दैट सोडियम कंटेन अ नेट पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज इसमें क्या है, एक प्रोटॉन ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए सोडियम के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, सी नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन। Chlorine atomic number is 70. We have written already. See, K shell completely filled, L shell is also completely filled, but if we talk about M shell, 7 electrons are here. To achieve the noble gas configuration, chlorine require 1 more electron. क्लोरीन को यहाँ पर क्या एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। गेन किससे करेगा, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इट विल गेन दिस इलेक्ट्रॉन। ओके, और इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या होगा हमारे पास, सी हेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 287, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। गेन कर रहे हैं हम, इसीलिए इसको रिएक्टेंट की साइड हमने ऐड किया, किसने ले लिया है किसी से। एंड आफ्टर एडिंग क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 288। ओके, ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर प्रोटॉन इतने ही हैं बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, बिकॉज क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओके, इन केस ऑफ सोडियम इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन एक लॉस किया था। लॉस करने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज का। इसने क्या किया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। आफ्टर गेनिंग हमें पता है दैट प्रोटॉन्स आर इक्वल, 17 ही हैं, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए हैं। 17 तो ऑलरेडी थे, इसने एक और गेन कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से ही क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। ओके, सो सी नाउ हाउ विल यू डू द डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम क्लोराइड। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। See simply, first of all write here sodium, check the electrons present in the outermost shell. See here, outermost shell is M, M क्या है यहाँ पर, इसकी outermost shell है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं आपको सिर्फ वही रिप्रेजेंट करने हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। कितने हैं सोडियम में, 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाली सेल में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डॉट, एक ही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोरीन में कितने हैं, क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, वी नो दैट sodium donate 1 electron to chlorine, means metal transfer 1 electron to non metal। ये जो इलेक्ट्रॉन था इसका, ये अपना किसको ट्रांसफ़र कर देगा, क्लोरीन को। और उसको ट्रांसफ़र करने के बाद स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगी, Na पॉजिटिव, Na के ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन। एंड क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के अपने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किससे गेन किया है, सोडियम से। ये इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से गेन किया है, और इलेक्ट्रॉन एक गेन करने की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, अनायन फॉर्मेशन इज देयर। सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, सी हमें यहाँ पर बेटे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको करना क्या है, यू नीड टू रिमेंबर जस्ट अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड सिंबल ऑफ द एटम। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो हमने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमें पता है कि इसका ऑक्टेट और डुप्लेट किस टाइप से कंप्लीट करना है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये लॉस करेगा। लॉस करने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज का कैटायन फॉर्मेशन होता है। गेन करेगा ये वाला अपना 8 कंप्लीट करने के लिए, आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन इज देयर।
सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही चीज़ माइंड में रखनी है कि जो लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन है आपको वही रिप्रेजेंट करने हैं डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। इनके साथ सोडियम डॉट, क्लोरीन में 7 थे तो हमने 7 क्रॉस लगा दिए। यहाँ पर हुआ क्या है, ये शो कर रहा है एरो की हेल्प से कि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है क्लोरीन को। ओके, तो यहाँ पर सोडियम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन में आपने शो करने हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 इसके खुद के अपने इलेक्ट्रॉन थे, बट 1 इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ से, सोडियम से गेन किया है। ओके, और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। ओके, होप इट इज़ क्लियर टू यू। वी विल डू, आई विल शो यू 2-3 more example regarding this as it will be clear to you. If we talk about magnesium chloride Na2O CaO, suppose we have these 3 main examples and question is write the electron dot structure for magnesium chloride, for sodium oxide, for calcium oxide. Okay, how will you do? Simply आपको कुछ भी नहीं करना है, take the first element, sorry compound MgCl2. Okay, check the element, 1 magnesium 2 chlorine. Okay, first of all write magnesium, write chlorine, atomic number 12, atomic number 17. अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है 2 8 2 2 8 7। सोडियम के केस में क्या था, लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम केस में हमें कितने मिले, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हमें क्या चेक करना है, हमें यहाँ पर लिखना है मैग्नीशियम, बट यहाँ पर ध्यान रखना आपको क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है। सोडियम क्लोराइड के केस में क्या था, क्लोरीन एक ही था। यहाँ पर क्या MgCl2 है, दैट मीन्स हमें 2 क्लोरीन लिखने हैं। ओके, 1 क्लोरीन हेयर एंड 1 क्लोरीन हेयर। मैग्नीशियम के लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, 1 2। दोनों ही क्लोरीन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, चेक हियर। तो हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सेम हेयर 1 2 3 4 5 6 7। देखो बेटे, अब मैग्नीशियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। 2 क्लोरीन एटम है हमारे पास, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा और 1 इस क्लोरीन को। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब इसने अपनी खुद की भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो भी नोबल गैस में स्टेबल बना ली है, और दोनों क्लोरीन को भी इसने स्टेबल बना लिया है। हुआ क्या है अब इसके अंदर, सी मैग्नीशियम ने क्या किया है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, दैट मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज, Mg 2 पॉजिटिव। एंड इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन हमारे पास अगर 2 है तो हम ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 2 मेंशन करेंगे, 1 2 3 4, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ से लिए है, वहाँ से, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, 2 क्लोरीन थे, इसके लिए हमें ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर डबल आपको लिख के शो कर देना है। ओके, सी इफ वी टॉक अबाउट Na2O, सेम यहाँ पर है, दैट मीन्स 2 सोडियम है हमारे पास और 1 ऑक्सीजन है। सोडियम के लिए क्या होगा, एटॉमिक नंबर 11 281, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 826। सी बेटे, नाउ सोडियम के लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1 ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 रिप्रेजेंट करेंगे। सी सोडियम कितने थे हमारे पास, Na2O 2 सोडियम है, दैट मीन्स हमें 2 सोडियम लिखने की जरूरत है, एक हमने यहाँ पर लिख दिया, एक यहाँ पर लिख देते हैं, Na 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सी है, ऑक्सीजन रिक्वायर 2 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम इसको ट्रांसफर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड वाला सोडियम, बिकॉज वी हैव 2 सोडियम 1 and 2, दोनों से 1 लेने के बाद ऑक्सीजन के पास क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अटैन हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, Na के हमारे पास 2 एटम हैं, चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं।
इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 2 इसने गेन कर लिए हैं, ओके। और क्या चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, ओके। सेम आपको ये भी करना है, ये आपके एग्जांपल के लिए मैंने छोड़ दिया है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसके एटॉमिक सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 लाइक मैग्नीशियम, ऑक्सीजन में होंगे 6 जैसे कि इसमें है, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके ये वाला खुद से वो करना है, सोल्व करना है। सो सी हेयर वन मोर थिंग, क्या आपने यहाँ पर स्पेशल चीज़ देखी है, वी हैव सीन दैट इन ऑल दीज केसेस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है वो कहाँ से कहाँ हुआ है, मेटल से नॉन मेटल में। एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड, जो हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के केस में, दैट कंपाउंड इज नोन एज द आयोनिक कंपाउंड, और वी कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ऑल्सो। उसको हम आयोनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। आयोनिक क्यों, बिकॉज उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के केसेस में बना है। सपोज हमने सोडियम क्लोराइड का किया था, हमने क्या बनाया कंपाउंड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव लाइक दिस। तो ये जो हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, इट इज़ द आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, और वी कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। बोथ आर द सेम थिंग। आयोनिक क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, कैटायन का फॉर्मेशन भी हुआ है, एनायन का फॉर्मेशन भी हुआ है, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगा, द कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ओके, एंड सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड some properties of ionic compound, कि जो हमने आयोनिक कंपाउंड बनाए हैं उनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, See, first property is about their physical state or physical nature, we can say. We know that ionic compounds are formed due to the formation of opposite charge on the two elements. दो एलिमेंट है हमारे पास, मेटल है नॉन मेटल है, एक पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, एक पर नेगेटिव चार्ज बनता है, दैट मीन्स अपोजिट चार्ज फॉर्मेशन इज देयर। सो व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट, अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो क्या होंगे, उनके अंदर क्या होगा, जो इंटर आयोनिक बॉन्ड है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इन दैट केस, दैट मीन्स इट्स स्टेट इज सॉलिड, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हार्ड भी होते हैं, एंड मोर ओवर दे आर ब्रिटल ऑल्सो। ब्रिटल मीन टू से whenever we have to apply force on them they can easily break, कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इजीली टूट जाता है, लाइक आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन चोक एंड इट इज़ ब्रेक, दैट मीन दिस चोक इज ब्रिटल इन नेचर। मोरओवर था क्या, ये सॉलिड इन स्टेट, ओके। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर हमारे पास किसी का नेचर सॉलिड है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इट इज़ हाई। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज हाई बिकॉज वी रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द two elements, because there is a strong force of attraction, strong ionic bond between the two elements in case of compound, okay. So their melting and boiling point is high, कि हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। थर्ड इज इफ यू टॉक अबाउट इट्स सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी मीन टू से कि किसके अंदर ये डिजोल्व हो सकता है, किसके अंदर ये नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है दैट दीज आर द आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक मीन टू से दीज आर द पोलर कंपाउंड, एंड पोलर ऑलवेज डिजोल्व इन
polar solvent. That means it is soluble in water. We know that water is a soluble. अगर हम इसका डिसोसिएशन करते हैं, it is H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन. यहाँ पर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव है. इन सारे कंपाउंड्स के अंदर भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा है आयोनिक कंपाउंड में. दैट मीन्स पोलर ऑलवेज डिजोल्व इन द पोलर सोलवेंट. पोलर का और कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यही याद रखना है. पोलर उसी को बोलते हैं जहाँ पर एक कैटायन और अनायन दोनों का फॉर्मेशन हो जिस कंपाउंड के अंदर. दैट मीन्स पोलर डिजोल्व इन पोलर सोलवेंट एंड इफ वी टॉक इट विल नॉट बी डिजोल्व इनटू द नॉन पोलर लाइक पेट्रोल एंड कैरोसिन, बिकॉज वी नो दैट पेट्रोल एंड कैरोसिन इज द नॉन पोलर सोलवेंट. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास होने के लिए क्या होना चाहिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. सी हियर हमें पता है कि क्या सॉलिड स्टेट में जब तक हमारे पास कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहेगा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओनली इन मोल्टन स्टेट दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. कब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी? इन मोल्टन स्टेट. वाई इन मोल्टन स्टेट? बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पार्टिकल्स के बीच में हीट गेन करने की वजह से वो क्या होगा, कम हो जाएगा. एंड आयंस आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ओके, सो दीज आर द 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड. फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये नेचुरल है कि अगर जो सब्सटेंस हमारे पास सॉलिड है जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में ज़्यादा है, हमें पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों क्या टाइटली अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट्स वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर हाई. Next is solubility. It dissolve in water but not dissolve in petrol and kerosene. Electrical conductivity, it can conduct electricity only when it is in the molten state, but if it is in the solid state it can't conduct electricity. Okay, so thanks for watching my video. So tomorrow we will start with the new concept of this chapter. Okay, till then thank you and have a nice day.